ٹائگر اسے مزید ہدایات دیتا ہوا اسپیشل پوائنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ عمران لیبارٹری سے نکل کر جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا اور وہ بے حد تھکا تھکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پتا چلا؟ بلیک زیرو نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اس آواز کو ذہن میں رکھ کر آوازیں نکال نکال کر ریکارڈنگ کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی آواز ایسی نہیں ہے جس سے میں یہ اندازہ لگا سکتا کہ یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے، عمران نے کہا اور اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا۔ تو کیا ان آوازوں سے آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، وہ جو کوئی بھی ہے انتہائی ذہین ہے۔ اس نے جس طرح آواز بدل کر بات کی تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اصل آواز مکمل طور پر کور اپ کر لی تھی۔ شاید اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر کوئی ماہر کرنل شفقت مرزا کے دماغ میں جھانکنے کی کوشش کرے گا تو وہ کرنل شفقت مرزا کے دماغ میں موجود اس کی آواز چیک کر سکتا ہے، اس لیے اس نے انتہائی احتیاط سے کام لیا تھا، عمران نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تب کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے اور وہ S1 لے کر کہاں گیا ہے؟ بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اب مجھے زیرو بینک اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی چیکنگ کرنی پڑے گی اور ایسے کلوز حاصل کرنے پڑیں گے جس سے اس نامعلوم شخص کی نشاندہی ہو سکتی ہو، عمران نے کہا۔ اس دوران اگر وہ S1 لے کر یہاں سے نکل گیا تو؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اول تو ایسا ناممکن ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ S1 پاکیزہ سے نکال کر لے جانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہمیں اس آدمی کو ہر صورت میں ٹریس کرنا پڑے گا۔ وہ S1 جہاں بھی لے کر جائے گا ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ اس کے لیے آپ کو نہ جانے کہاں کہاں کی ہاک چھاننی پڑے گی، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاک چھاننی نہیں، کھانا پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے الجھن اور پریشانی کے تاثرات یکلہت غائب ہو گئے تھے اور اب وہ پہلے جیسا فریش اور کھلنڈرا دکھائی دینے لگا تھا، جیسے کوئی پریشانی اور الجھن اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ ہاک چھاننا تو محاورہ ہے، لیکن یہ ہاک کھانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ مطلب یہ کہ تم بھی ہاک کھاتے ہو، میں بھی، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو روزانہ ہی ہاک کھاتے ہیں، عمران نے کہا۔ اگر آپ اس مثال کو دھول مٹی اور گرد سے تشبیہ دے رہے ہیں تو پھر میں آپ کی بات مان سکتا ہوں کہ ہم سب ہی ہاک کھاتے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں دھول مٹی اور گرد کی بات نہیں کر رہا، میں باقاعدہ ہاک کھانے کی بات کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہاک باقاعدہ کھائی جاتی ہے؟ یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں نے تمہیں اکثر ہاک کھاتے دیکھا ہے، عمران نے کہا۔ میں اور ہاک کھاتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کیوں، تم گوشت نہیں کھاتے کیا؟ عمران نے کہا۔ گوشت؟ ہاک سے گوشت کا کیا تعلق؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بہت گہرا تعلق ہے، دانش منزل میں رہتے ہوئے بھی تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو یہ پردے آپ ہٹا دیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم گوشت اور ہاک میں فرق سمجھتے ہو، عمران نے کہا۔ جی ہاں، واضح فرق ہے، کہاں گوشت اور کہاں ہاک، بلیک زیرو نے کہا۔ بھلے آدمی، ہاک کا مطلب بھی گوشت ہی ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ہاک کا مطلب گوشت ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہاک کا مطلب گوشت ہوتا ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاک کو الٹا پڑھو تو کیا بنتا ہے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی استاد بچے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کاخ، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کاخ کے لغوی معنی جانتے ہو، عمران نے پوچھا۔ اس کے لغوی معنی محل کے ہوتے ہیں، بلیک زیرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا۔ جس طرح تم نے ہاک کو الٹا پڑھا تھا، اب اسی طرح محل کو الٹا پڑھو، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ محل کو الٹا پڑھو تو لحم بنتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ گڈ شو، ذہین شاگرد ہو، اب بتاؤ لحم کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، عمران نے استاد کے انداز میں کہا۔ لحم کے لغوی معنی گوشت کے ہوتے ہیں، اور بلیک زیرو نے کہا، اور پھر وہ بولتے بولتے رک گیا۔ دوسرے لمحے وہ عمران کی بات کا مطلب سمجھ کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تو آپ ہاک کو الٹا پلٹا کر اور اس کے لغوی معنی بنا کر گوشت کہنا چاہتے تھے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم بتاؤ، تم ہاک کھاتے ہو یا نہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ جی ہاں، کھاتا ہوں، بالکل کھاتا ہوں جناب، آپ سے باتوں میں بھلا کوئی جیت سکا ہے جو میں جیتوں گا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ جیتنے کے لیے دماغ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو تمہارے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہا آپ نے؟ میرے پاس دماغ ہے؟ آپ کے پاس دماغ نہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر میرے پاس دماغ ہوتا تو لوگ مجھے احمق کیوں کہتے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ جو مرضی کرو، تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف ہو، چاہے تو رمبا سمبا ڈانس شروع کر دو یا بے ہنگم آواز میں گانا شروع کر دو، تمہیں کون یہاں دیکھ رہا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں S1 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔
S1 का पता तो अब एक ही तरीके से चल सकता है, इमरान ने कहा। किस तरीके से? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये पता करना पड़ेगा कि इस दांत को तलाश किसने किया था। जहां तक मुझे याद है, ये दांत आसार कदीमा तलाश करने वाली एक टीम ने तलाश की थी, और इस टीम में एक एक्वेरियन भी शामिल था जो साइंसी आलात से ज़मीन की गहराइयों में छुपे हुए खजाने भी ढूंढ सकता था। पता लगाओ इसका नाम क्या है और वो इस वक्त कहाँ है, इमरान ने कहा। मैं आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर इशफाक हुसैन से बात करता हूँ, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, इमरान के सेल फोन की घंटी बाज उठी। इमरान ने चौंक कर जेब से सेल फोन निकाला और इसका डिस्प्ले देखने लगा। स्क्रीन पर टाइगर का नाम डिस्प्ले हो रहा था। इमरान ने ओके का बटन प्रेस किया और सेल फोन कान से लगा लिया। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। किस चिड़ियाघर से बोल रहे हो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। मैं इस वक्त अपने स्पेशल पॉइंट पर हूँ बॉस, क्या आप यहाँ कुछ देर के लिए आ सकते हैं, टाइगर ने कहा। तो इसका लहजा सुनकर इमरान चौंक पड़ा। टाइगर के लहजे में कदरे परेशानी और उलझन के तासुरात नुमाया थे। कोई खास बात, इमरान ने पूछा। यस बॉस, मैं यहाँ एक आदमी को लाया हूँ, इससे मुझे कुछ ऐसी बातों का इल्म हुआ है जिन्हें सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ, टाइगर ने कहा। मैं पहले से ही परेशान हूँ, मजीद परेशानी का कहकर क्यों मुझे डरा रहे हो, इमरान ने कहा। बात ही ऐसी है बॉस जिसे आपके इल्म में लाना ज़रूरी है, टाइगर ने कहा। फ़ोन पर ही बता दो, मैं एक कान बंद कर लेता हूँ ताकि मुझे परेशानी कम महसूस हो, इमरान ने कहा। यस बॉस, राहत नगर में मेरा एक दोस्त रहता था ब्लैकी, जिसने मुझे इत्तला दी थी कि इसके पास एक अहम इत्तला है जो पाकिशिया की सलामती से मुतल्लिक है। मैं उसकी तलाश में राहत नगर गया तो मुझे पता चला कि मेरे पहुंचने से कबल उसे अगवा कर लिया गया है। मैंने उसके अगवा कुनंदगान का पता लगाया तो पता चला कि ब्लैकी के अगवा में कई अफराद के हाथ थे। मैं एक एक करके ब्लैकी के अगवा में मुलविस अफराद तक पहुंच रहा था। आखिर में मुझे उसका सुराग मिल गया। वो वाइट क्लब के पार्कर के पास था। पार्कर ने आसानी से जुबान ना खोली तो मैंने उंगलियां टेढ़ी की। तब उसने मुझे बताया कि उसने ब्लैकी को अपनी कैद में रखा हुआ है। इसके जरिए मैं ब्लैकी तक पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि एक गैर मुल्की तंजीम पाकिस्तान से असलहा और मंशियात के साथ साथ इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है। उसने ये भी बताया कि किसी खास दांत के बने हुए मेटल बॉक्स में एक खास किस्म का पाउडर खुफिया तौर पर स्मगल किया जा रहा था, टाइगर ने कहा। और फिर इसने ब्लैकी तक पहुंचने की सारी तफसील इमरान को बता दी। किस किस्म का पाउडर है वो, इमरान ने पूछा। ब्लैकी के कहने के मुताबिक वो सुर्ख रंग का पाउडर है जिसमें तेज चमक भी है। ब्लैकी चूंकि हर किस्म की मंशियात पहचानता है, इसलिए उसके कहने के मुताबिक ये रेड पाउडर कोई मंशियात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी धात है जो किसी लेबोरेटरी से चोरी की गई है, टाइगर ने कहा। धात क्या मतलब? ब्लैकी को ये कैसे पता चला कि वो कोई खास धात है जिसे लेबोरेटरी से चोरी किया गया है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, ब्लैकी के पास एक गैर मुल्की लड़की एक मिनी मेटल बॉक्स लेकर आई थी। देखने में वो बॉक्स आम सा था। ब्लैकी को इस बात पर हैरत हो रही थी कि ये छोटा सा बॉक्स एक्रीमियन लड़की आसानी से अपने साथ ले जा सकती है। फिर उसे क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि वो इस बॉक्स को इंतहाई खुफिया तौर पर एक्रीमिया स्मगल कराना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेटल बॉक्स खामोशी से एक्रीमिया स्मगल कर दिया जाए। इसके लिए इस लड़की ने ब्लैकी को भारी रकम दी थी। ब्लैकी के चूंकि स्मगलर से ताल्लुकात थे, इसलिए उसने इस लड़की की बात मान ली थी। मेटल बॉक्स के साथ साथ गैर मुल्की लड़की भी खुफिया तौर पर पाकिस्तान से एक्रीमिया जाना चाहती थी, इसलिए वो ब्लैकी के एक गेस्ट रूम में रुक गई थी। ब्लैकी ने उसे मेटल बॉक्स समेत 2 रोज में पाकिस्तान से निकालने का वादा किया था। लड़की को गेस्ट रूम पहुंचाकर ब्लैकी ने वापस आकर एहतियातन मेटल बॉक्स खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसमें सुर्ख रंग का चमकदार पाउडर भरा हुआ था। उसने फौरी तौर पर सैंपल लिया और उसे चेक करने लगा। उसके ख्याल के मुताबिक ये एक खास किस्म का ड्रग हो सकता है, लेकिन चेकिंग के फौरन बाद उसे मालूम हो गया कि ये ड्रग नहीं बल्कि एक खास दांत है और गैर मुल्की लड़की ये दांत एक्रीमिया पहुंचाना चाहती थी। उसने गेस्ट रूम में जाकर गैर मुल्की लड़की से बात की तो गैर मुल्की लड़की इसकी जान की दुश्मन बन गई। उसने ब्लैकी को हलाक करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वो ब्लैकी के हाथों हलाक हो गई। उसके बाद ब्लैकी ने मिनी मेटल बॉक्स अपने पास छुपा लिया और फिर उसने मुझे कॉल किया तो मैं फौरन उसके पास पहुंच गया, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उसे अगवा कर लिया गया और उसे अगवा करने वाले उससे मेटल बॉक्स हासिल करना चाहते थे जिसमें रेड पाउडर था। ब्लैकी पर तशद्दुद किया गया था, लेकिन ब्लैकी ने मुंह नहीं खोला था। अब जब मैंने उसे पार्कर से आज़ाद कराया तो वो मुझे अपने क्लब ले आया। क्लब आकर उसने अपने खुफिया तहखाने से वो मेटल बॉक्स निकालकर मुझे दिखाया। मैंने मेटल बॉक्स लेकर दारुल हुकूमत आ गया। यहाँ आकर जब मैंने रेड पाउडर को अपने लेबोरेटरी में ले जाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि ये रेड पाउडर वाकई एक जदीद दांत है जिसे कोड में S1 कहा जाता है, टाइगर ने कहा। तो S1 का सुनकर इमरान के साथ साथ ब्लैक ज़ीरो भी चौंक पड़ा। S1, क्या तुम्हें यकीन है कि रेड पाउडर S1 है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, मैंने कंफर्म करने के बाद ही आपको कॉल किया है, टाइगर ने जवाब दिया।
मिनी मेटल बॉक्स में S1 की कितनी मिकदार है? इमरान ने होंठ बेचते हुए पूछा। मैंने मेटल बॉक्स से सारा पाउडर निकाल लिया है, ये कम से कम 1000 ग्राम है, टाइगर ने जवाब दिया। तुम इस वक्त कहाँ हो? इमरान ने पूछा। मैं स्पेशल पॉइंट पर हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, मैं आ रहा हूँ, एक बार मैं खुद भी इस पाउडर को चेक करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने इसे मजीद चंद हदायत दी और फिर उसने सेल फोन बंद कर दिया। ये क्या चक्कर है? मिनी मेटल बॉक्स S1, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान ने चूंकि लाउडर ऑन नहीं किया था, इसलिए ब्लैक जीरो टाइगर की बात नहीं सुन सका था। वो इमरान के अल्फाज सुनकर चौंका था। इमरान ने उसे टाइगर से होने वाली बातें बताई तो ब्लैक जीरो भी हैरान रह गया। ओ, इसका मतलब है कि जीरो बैंक से निकालने के बाद S1 को मेटल बॉक्सेस में छुपाया गया था, इसीलिए इसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये खास किस्म का मेटल बॉक्स है जिसमें छुपाए गए रेड पाउडर को किसी भी साइंसी आले से चेक नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हम कोशिश के बावजूद ये मालूम करने में नाकाम रहे हैं कि S1 कहाँ है, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। और वो लड़की ब्लैकी की मदद से मिनी मेटल बॉक्स को स्मगल कराना चाहती थी, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इमरान ने इस्बात में सर हिलाकर कहा। लेकिन वो लड़की कौन थी और इसे S1 से भरा मेटल बॉक्स कहाँ से मिला था? ब्लैक जीरो ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में कहा। लड़की हलाक हो चुकी है, इस सवाल का जवाब वही दे सकती थी, इमरान ने कहा। आपने बताया है कि टाइगर को मेटल बॉक्स से 1000 ग्राम S1 मिला है, जबकि जीरो बैंक से 10,000 ग्राम S1 गायब कराया गया है, तो क्या बाकी S1 भी ऐसे ही मेटल बॉक्सेस में छुपाया गया है? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और अब तो मुझे फिक्र लाहक हो रही है, इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। किस बात की फिक्र? ब्लैक जीरो ने पूछा। S1 अगर इसी तरह स्पेशल मिनी बॉक्सेस में छुपाया गया है तो फिर अब तक यकीनन सारा S1 यहाँ से निकल चुका होगा। चूंकि मेटल बॉक्सेस में छुपाया हुआ S1 ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए S1 शायद ही यहाँ मौजूद हो, इमरान ने कहा। लड़की मिनी मेटल बॉक्स एक्रीमिया ले जाना चाहती थी, इसका मतलब है कि S1 चोरी करने वालों में एक्रीमियन एजेंटों का हाथ है, ब्लैक जीरो ने कहा। शायद, इमरान ने कहा। शायद क्यों? जब लड़की का ताल्लुक एक्रीमिया से है और वो ब्लैकी के जरिए मिनी मेटल बॉक्स एक्रीमिया ले जाना चाहती थी, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्रीमियन लेडी एजेंट थी, ब्लैक जीरो ने कहा। एक्रीमिया का नाम इस्तेमाल करके मेटल बॉक्स कहीं और भी तो ले जाया जा सकता है। दुनिया भर में की जाने वाली 80 से 90% स्मगलिंग समुद्री रास्ते से की जाती है और पाकिस्तान से एक्रीमिया जाने वाले रास्ते में बेशुमार ममालिक पड़ते हैं, इमरान ने कहा। तो अब कैसे पता चलेगा कि इस लड़की का ताल्लुक किस मुल्क से था और वो किसके लिए काम कर रही थी? ब्लैक जीरो ने कहा। इस लड़की को ब्लैकी ने हलाक कर दिया है। अगर उसकी लाश महफूज होती तो इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसका किस मुल्क से ताल्लुक था, या फिर हो सकता है कि ब्लैकी से इस लड़की के कागजात मिल जाए, वो इसी के पास उसके गेस्ट हाउस में ठहरी थी, इमरान ने कहा। कागजात जैली भी तो हो सकते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। जैली कागजात भी तो कहीं से बनवाए गए होंगे, वो कागजात जहां से भी बनवाए गए होंगे उनका पता चल जाएगा तो लड़की की असलियत भी सामने आ जाएगी, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अब आप टाइगर के पास जा रहे हैं? इमरान को उठते देखकर ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, मैं उसके साथ राहत नगर जाकर एक बार खुद भी ब्लैकी से मिलना चाहता हूँ, हो सकता है कि ब्लैकी से कुछ और मालूमात मिल जाए, इमरान ने कहा। मैंने आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर इशफाक हुसैन से बात कर ली है, ब्लैक जीरो ने कहा। ओह हाँ, क्या बताया है उन्होंने? कौन गैर मुल्की था इस टीम में जिसने S1 दरियाफ्त किया था? इमरान ने चौंक कर कहा। वो एक्रीमियन माहिर आसार कदीमा डॉक्टर विल्मर था, उसी ने S1 दरियाफ्त किया था। उसके साथ उसकी एक लेडी असिस्टेंट कैथरीन भी थी, ब्लैक जीरो ने कहा। कहाँ है दोनों? इमरान ने पूछा। वो दोनों पिछले माह ही अपना काम मुकम्मल करके एक्रीमिया वापस जा चुके हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इन दोनों ने ही S1 का राज लीक आउट किया होगा। इन हालात में तो वाकई S1 की चोरी भी एक्रीमियन एजेंटों के ही हाथ मालूम हो रहे हैं, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। तब तक तो मिनी मेटल बॉक्सेस के जरिए अब तक सारा S1 एक्रीमिया पहुंच चुका होगा, ब्लैक जीरो ने कहा। S1 एक्रीमिया पहुंचा है या कहीं और, इसे वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरी दुनिया क्यों न खंगालनी पड़े, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और फिर वो मुड़कर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। थोड़ी ही देर में वो अपनी स्पोर्ट्स कार में दानिश मंजिल से निकलकर टाइगर के स्पेशल पॉइंट की जानिब उड़ा जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो स्पेशल पॉइंट पर पहुंच गया। टाइगर बाहर खड़ा उसका मुंतजिर था। इमरान ने कार इमारत की पोर्च में रोकी और कार से निकलकर बाहर आ गया। कहाँ है S1? सलामो दुआ के बाद इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर पूछा। लेबॉर्ट्री में है, आए, टाइगर ने कहा और इमरान के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर में वो एक जदीद साइंसी साजो सामान से आरास्ता जेर ज़मीन लेबॉर्ट्री में थे। टाइगर ने ये लेबॉर्ट्री खसूसी तौर पर तजर्बात के लिए बनाई थी, जहां वो फारिग औकात में काम करता था। टाइगर ने एक बॉक्स लाकर इमरान को दिया तो इमरान ने बॉक्स खोल लिया। बॉक्स में सुर्ख रंग का पाउडर भरा हुआ था जिसमें हल्की हल्की चमक भी मौजूद थी। इमरान ने
पाउडर चुटकी में लेकर चेक किया, उसे सूंघा और फिर वो एक तवील सांस लेकर रह गया। ये S1 ही है, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैंने तजर्बात किए हैं, ये 100% खालिस S1 है, इसमें एक पॉइंट भी मिलावट नहीं है, टाइगर ने जवाब दिया। वो मिनी मेटल बॉक्स दिखाओ जिनसे तुमने S1 निकाला है, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और लेबॉर्ट्री के मुल्हिका कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो इसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें एक सिल्वर कलर का छोटा सा मेटल बॉक्स रखा हुआ था। नरगे में सफेद रंग के दस्ताने भी रखे हुए थे। इमरान ने दस्ताने पहने और फिर वो मेटल बॉक्स को उठाकर इसे गौर से देखने लगा। मेटल बॉक्स ज्यादा पुराना नहीं है, इसे हाल ही में बनाया गया है और इसे वाकई ऐसे मेटल से बनाया गया है कि इसमें रखी गई किसी भी चीज को साइंसी आलात से चेक नहीं किया जा सकता, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ब्लैकी कहाँ है, इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ मेटल बॉक्स वापस ट्रे में रखते हुए कहा। वो अपने क्लब में ही होगा, टाइगर ने जवाब दिया। उसने लड़की का नाम क्या बताया था जो इसके पास मेटल बॉक्स स्मगल कराने के लिए आई थी, इमरान ने पूछा। मैंने उससे लड़की का नाम नहीं पूछा था, टाइगर ने जवाब दिया। मेरी उससे बात कराओ, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और जेब से सेल फोन निकालकर उस पर ब्लैकी के नंबर प्रेस करने लगा। यस ब्लैकी बोल रहा हूँ, राब्ता मिलते ही मर्दाना आवाज सुनाई दी। कोबरा बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। अंडरवर्ल्ड में वो कोबरा के नाम से ही मशहूर था, इसलिए सब उसे कोबरा के नाम से ही जानते थे। यस कोबरा बोलो, क्यों फोन किया है, ब्लैकी ने कहा। मेरा बॉस तुमसे रेड पाउडर और इस लड़की के बारे में कुछ पूछना चाहता है, बात से बात करो और ये तुमसे जो भी पूछे उन्हें सही सही जवाब देना, टाइगर ने कहा। अगर वो तुम्हारा बॉस है तो फिर वो मेरा भी बॉस है, कराओ बात, ब्लैकी ने कहा। तो टाइगर ने सेल फोन इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, इमरान ने कहा। यस बॉस, ब्लैकी बोल रहा हूँ, ब्लैकी ने मोहब्बाना लहजे में कहा। ब्लैकी, मुझे तुमसे इस गैर मुल्की लड़की के बारे में तफसीलात मालूम करनी है। तुम्हें गैर मुल्की लड़की ने अपना नाम क्या बताया था, इमरान ने संजीदगी से पूछा। उसने अपना नाम मार्था होजरी बताया था बॉस, ब्लैकी ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। मार्था होजरी कहाँ से आई थी वो, इमरान ने पूछा। उसने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ से आई है, लेकिन वो जिस जीप में आई थी मैं इस जीप को पहचानता हूँ, ब्लैकी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम जानते हो कि वो जीप किसकी है, इमरान ने पूछा। वो राजगढ़ के नवाब हाकिम अली की जीप थी बॉस, जीप नवाब हाकिम अली का ड्राइवर गुलहान लाया था, मैं उसे पहचानता हूँ। वो नवाब खान के लिए खसूसी ब्रांड की शराब मेरे क्लब से ही ले जाता है, ब्लैकी ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। उसे वो गैर मुल्की लड़की मार्था याद आ गई थी जो चंद रोज पहले एयरपोर्ट की पार्किंग में उसकी कार में आकर बैठी थी और उसने तेज रफ्तार ड्राइविंग करके जेट पायलटों को भी मात दे दी और इंतहाई तेज रफ्तारी से कार ड्राइव करके राजगढ़ पहुंची थी। राजगढ़ दाखिल होते ही वो इमरान की कार से निकलकर एक टैक्सी में सवार हो गई थी। इमरान ने इस टैक्सी का ताकुब किया था। मार्था नामी गैर मुल्की लड़की को इसे नवाब हाकिम अली की हवेली में ही जाते देखा था और फिर वो वहीं से वापस लौट आया था। नवाब हाकिम अली की जीप में सिर्फ लड़की आई थी या मेटल बॉक्स भी इसी जीप में लाया गया था, इमरान ने पूछा। जीप में सिर्फ लड़की आई थी और मेटल बॉक्स इसी के पास था, ब्लैकी ने जवाब दिया। मैं तुम्हें एक हुलिया बताता हूँ, मुझे बताओ क्या ये इसी लड़की का हुलिया है, इमरान ने कहा। और उसने ब्लैकी को मार्था का हुलिया बताना शुरू कर दिया। कद कार तो इसी लड़की जैसा है बॉस, लेकिन हुलिया मुख्तलिफ है, ब्लैकी ने कहा। और उसने लड़की का हुलिया बताया तो इमरान को समझने में देर नहीं लगी कि ये वही लड़की मार्था थी और ब्लैकी ने इसे जो हुलिया बताया था वो ऐसा था जैसे मार्था मेकअप में हो। वो हलाक कैसे हुई, मुझे सारी तफसील बताओ, इमरान ने कहा। मुझे मेटल बॉक्स पर शक हुआ था बॉस, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस छोटे से बॉक्स में या तो बेशुमार कीमती हीरे होंगे या फिर खास किस्म का ड्रग जो लड़की खुफिया तौर पर एक्रीमिया स्मगल कराना चाहती है। उसने छोटे से बॉक्स को एक्रीमिया स्मगल कराने के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम दी थी। इस रकम में तो मैं राजगढ़ के सैकड़ों अफराद को एक्रीमिया स्मगल किया जा सकता था। मैंने बॉक्स इंतहाई एहतियात से खोला और जब बॉक्स खुला तो उसमें मुझे सुर्ख चमक वाला अजीब सा पाउडर दिखाई दिया तो मैं चौंक पड़ा। मुझे पहले तो ऐसा लगा जैसे सुर्ख पाउडर खून है जो खुश्क होकर बॉक्स में पाउडर जैसा बन गया है, लेकिन फिर मुझे अपनी सोच पर हंसी आ गई कि लड़की को खून का पाउडर स्मगल कराने की क्या ज़रूरत थी। मैंने रेड पाउडर को चेक किया, मैं हर किस्म के ड्रग्स चेक करने का माहिर हूँ, मुझे वो किसी भी किस्म का ड्रग मालूम नहीं हो रहा था। मैंने फौरी तौर पर कोबरा से राब्ता किया और उसे अपने पास बुला लिया। कोबरा के आने में वक्त लग सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि कोबरा के आने से पहले मैं इस गैर लड़की से पूछूं कि वो कौन है और उसने रेड पाउडर कहाँ से चोरी किया है। मैं रेड पाउडर का सैंपल लेकर गेस्ट रूम में गया और जब मैंने गैर मुल्की लड़की को बताया कि मुझे मेटल बॉक्स से रेड पाउडर मिला है तो वो गुस्से में आ गई। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने अपने बचाव में रिवॉल्वर निकाला और इस पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई, ब्लैकी ने तफसील बताते हुए कहा। उसकी लाश कहाँ है, इमरान ने पूछा।
میں نے اس کی لاش گیسٹ روم میں ہی چھوڑ دی تھی باس۔ میں واپس اپنے آفس میں آیا تو تھوڑی دیر بعد میرے پاس دو آدمی آ گئے۔ ان دونوں نے بتایا تھا کہ وہ گریس کے آدمی ہیں اور مجھ سے شراب کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں نے ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان میں سے ایک عجیب ساخت کی گن نکالی اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ گن سے دھوئیں کا غبار سا نکل کر میری ناک سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک تہخانے میں ہوش آئے جہاں مجھے رانڈز والی کرسی پر جکڑا گیا تھا۔ وہاں پارکر نامی شخص نے مجھ پر تشدد کیا۔ وہ مجھ سے مارتھا ہوزری اور ریڈ پاؤڈر کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے یہ تو بتا دیا کہ مارتھا میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہے، لیکن میں نے اسے ریڈ پاؤڈر کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ بلیکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا تم نے ریڈ پاؤڈر والا میٹل باکس اپنے آفس میں ہی رکھا ہوا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، میں نے واپس آتے ہی میٹل باکس ایک خفیہ تہخانے میں چھپا دیا تھا۔ میرے جانے کے بعد یہاں مزید افراد آئے تھے جنہوں نے میرے کلب کے ایک حصے کو کھنگالا تھا۔ وہ شاید اسی میٹل باکس کی تلاش میں تھے، لیکن وہ میرے خفیہ تہخانے تک نہ پہنچ سکے تھے۔ بلیکی نے کہا، میں نے مارتھا ہوزری کی لاش کے بارے میں پوچھا تھا۔ کیا آپ بھی لاش گیسٹ روم میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، جب میں نے واپس آ کر گیسٹ روم میں دیکھا تو غیر ملکی لڑکی کی لاش وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ چونکہ میرا گیسٹ ہاؤس کلب سے کافی دور تھا جہاں صرف ایک چوکی دار ہوتا ہے، وہاں چند افراد پہنچے تھے جنہوں نے چوکی دار کو گولی مار دی تھی اور مارتھا کی لاش وہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے میٹل باکس تلاش کرنے کے لیے گیسٹ ہاؤس کو بھی کھنگالا تھا، بلیکی نے جواب دیا۔ اس کے بعد نواب حاکم علی اور اس کا کوئی آدمی تو نہیں آیا تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، کوئی نہیں آیا، بلیکی نے کہا۔ کیا تمہارے پاس لڑکی ایک ہی میٹل باکس لائی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، بلیکی نے کہا۔ اگر ایسے ہی میٹل باکس کسی ملک میں مزید اسمگل کیے جانے ہوتے تو تمہارے علاوہ اور کون ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ انسانی اسمگلنگ تو یہاں بہت سے افراد کرتے ہیں باس، لیکن گریس کی طرح یہاں فیروز دادا ہے جو ایک بڑی شپنگ کمپنی کا مالک ہے۔ ایسے کام زیادہ تر وہی کرتا ہے۔ نواب حاکم علی کے اس سے ہاتھ سے تعلقات ہیں۔ میں تو خود حیران ہوں کہ نواب حاکم علی نے غیر ملکی لڑکی کو میرے پاس کیوں بھیجا تھا؟ اگر اس کی معمولی نظر آنے والے میٹل باکس کو وہ اسمگل کرانا چاہتا تھا تو پھر اس لڑکی کو فیروز دادا کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ بلیکی نے کہا۔ کہاں ہوتا ہے یہ فیروز دادا؟ عمران نے ہون بھیجتے ہوئے پوچھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کلب میں ہوتا ہے، بلیکی نے کہا۔ کلب کا نام؟ عمران نے کہا۔ ہارٹ کلب۔ وہ اس کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے، بلیکی نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس سے چند مزید معلومات لیں اور پھر فون بند کر دیا۔ ہمیں اب نواب حاکم علی کو ٹٹولنا ہوگا باس، اس معاملے میں مجھے اسی کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ ٹائیگر نے عمران سے سیل فون لے کر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نواب حاکم علی کو میں خود دیکھ لوں گا، تم جا کر فیروز دادا کو چیک کرو۔ اگر S1 پاکیزہ سے باہر نکالا گیا ہے تو اسی طرح منی میٹل باکسز میں ہی چھپا کر نکالا گیا ہوگا، اور زیرو بینک سے 10,000 گرام S1 غائب ہوا ہے۔ ایک منی میٹل باکس میں 1,000 گرام S1 سما سکتا ہے، اسی حساب سے S1 10 میٹل باکسز میں چھپایا گیا ہوگا جنہیں اسی طرح باہر بھیجا گیا ہے جس طرح بلیکی کو اسمگل کرنے کا کہا گیا تھا۔ عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹائیگر کو زیرو بینک سے غائب ہونے والے S1 کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ یس باس، مجھے بھی اسی بات پر شک ہے کہ باقی کے میٹل باکسز فیروز دادا نے ہی پاکیزہ سے باہر نکالے ہوں گے۔ وہ واقعی اس علاقے کا خطرناک اور با اثر بدماش ہے اور وہ ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی کا مالک بھی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر تم نے اب تک اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا نام پہلے سامنے نہیں آیا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زیرو بینک سے کتنی مقدار میں S1 نکالا گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے جا کر وہاں چیک کرو اور اس کا منہ کھلواؤ۔ ہمیں بہرحال معلومات حاصل کرنی ہے کہ اگر S1 پاکیزہ سے نکل گیا ہے تو اسے کہاں پہنچایا گیا ہے اور اس سارے کھیل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ نواب حاکم علی کو میں دیکھ لوں گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ S1 کو ابھی اپنے پاس ہی محفوظ رکھو، جب ضرورت ہوگی تو میں تم سے لے لوں گا، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور میٹل باکس اٹھا کر اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ انہیں لایا تھا۔ عمران کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اب نواب حاکم علی سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا اور وہ نواب حاکم علی سے ملنے کے لیے جوزف اور جوانا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسپیشل پوائنٹ سے نکل کر رانا ہاؤس کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔